अच्छा जी, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर इज कि अगर हमारे पास कोई भी बीम है, लेट्स से इफ देयर इज अ बीम विद एनी स्पैन with any kind of loading, let's say there is a point load, maybe there is a UDL acting on the beam. So the physical response is कि इसके अंदर डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस होंगी एंड वो डिफ्लेक्शंस जो हम एक इलास्टिक कर्व से शो करते हैं, बेसिकली डिफ्लेक्टेड शेप जो है इसकी थोड़ी सी मैं एग्जैजरेटेड स्केल में शो करता हूँ, इज समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, as a result of this deflection, some of the fibers in this beam they will be subjected to compressive stresses, and on the other side there will be tensile stresses. We already have discussed कि जैसे ही अगर आपके पास किसी भी फाइबर किसी भी कह लें कि वायर या रोप की लेंथ अगर डिक्रीज करे, इट मींस इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल देयर इज अ रॉड और आप इसके ऊपर दोनों एंड्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंप्रेसिव फोर्स the length of this fiber or the length of this rod will decrease. In other case, if you apply the same amount of load in tensile direction, any tension force इसको apply करेंगे, this will result in an increase in length. So keeping in mind this thing, इस concept को अगर हम देखते हैं और इसी को ही इस concept को apply करें अपने इस beam के ऊपर, so you will observe that कि यहाँ पर जो top है, ये वाली जो लेंथ है, this has been reduced by original length. For example, original length आपके पास ये थी, when there was a curve like this one, ये curve बन गया। ठीक है, तो कर्व बनने की वजह से क्या होगा कि ये ऊपर वाली जो लेंथ है, it has been decreased now as compared to the original length, whereas the below length, यानी जो नीचे बॉटम के अंदर आपको एक लेंथ नजर आ रही है, this has been now increased as compared to this original length. ये बेसिकली ओरिजिनल लेंथ थी इसकी। सो इट मीन्स के अगर ये बीम डिफरेंट फाइबर से कंपोज हुआ हुआ है, सो द टॉप फाइबर्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और जो बॉटम फाइबर्स हैं दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस, जिसकी वजह से उन फाइबर्स की लेंथ इंक्रीज करी थी। इसी फिनोमेना को हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जिसको हम कहते हैं, जिसको मैंने इस तरह बताया था कि लेट से आप बीम को सामने से देख रहे हैं और यही इसके ऊपर इस तरह लोडिंग लगी हुई है व्हाट्सएवर, तो इसके अंदर जो बेंडिंग होने के बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होते हैं, दैट लुक्स लाइक समथिंग दिस वे। जूम करता हूँ, लाइक दिस वे। तो यहाँ पर ये लेंथ ऑफ लाइन जो होगी, बेसिकली दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, यानी इंटेंसिटी ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के। सो यू कैन सी के as you are moving away from the neutral axis, this is the neutral axis which I am showing you right now with the beam. So as you are moving away from the neutral axis, either on top side or either on the bottom side, so you can see the length, this length is the intensity or the length of this line, this has now been increasing. And once you reach at the top most fiber or the bottom most fiber at these location or at these location, you will experience the extreme flexural stresses, जिनको हम sigma max से represent करते हैं, we call them as sigma max, maximum flexural stresses. Normally the formula for this flexural stress was given by sigma is equal to my over I, and we read that y is a distance from the neutral axis, like this is the neutral axis. So y is basically the distance from neutral axis to any concerned point. ठीक है, अगर लेट से आपको कहा जाए कि इस बीम के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेसेस मालूम करें, तो आपने क्या करना है कि y इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड स्ट्रेसेस एट दिस पॉइंट, so y will be the distance from neutral axis to this point. So these are basically the y distances. So as the value of y increases, the flexural stresses will also increase. ये दोनों directly proportional एक दूसरे के, sigma is directly proportional to y, and ultimately एक वक्त ऐसा आएगा कि y will reach its maximum value, यानी y will become y max, और इस y max की वैल्यू को बेसिकली हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। Now this equation will transform to a new thing which is called sigma max, ठीक है जी, sigma max is equal to m y की जगह बेसिकली क्या आ जाएगा, mc over I, ठीक है जी, we call it maximum flexural stresses. ये maximum flexural stresses
जो है, जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, वी ऑलवेज पुट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन विद दिस वन, ठीक है। जब भी आप अभी भी देखेंगे, इसके अलावा when you go into your higher classes with the next subject to this part, MOS2 के अंदर जाएंगे, you will observe that whenever you write this sigma flexure stress, you will always put plus minus my over I. The reason why we are using these plus minus, they are basically representing tensile nature of stress and compressive nature of stresses. If there is a negative sign with this flexural stress, it means the flexural stresses are compressive flexural stresses, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि वंस यू लुक एट दीज लेंथ, अगर एक एलिमेंट जिसका यहाँ से डिस्टेंस लेट्स से कहने की जी 3 इंचेस था, ठीक है जी, और एक एलिमेंट जिसका यहाँ से भी डिस्टेंस 3 इंचेस था, दोनों के ऊपर अगर आप स्ट्रेसेस निकाल के देखेंगे, दे विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। द डिफरेंस बीइंग कि इफ दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सो टॉप एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, दिस विल बी हैविंग कंप्रेसिव फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, और जो बॉटम में इधर एलिमेंट होगा, दिस विल हैव फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि if the same thing happens in case of cantilever beams, if a beam is a cantilever, so it has an opposite behavior, क्योंकि जब आप किसी कैंटिलीवर बीम के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, लाइक इफ इट इज अ कैंटिलीवर बीम एंड यू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑन इट, लाइक दिस पॉइंट लोड और मे बी अ यूडीएल लोड, so it will deflect like this way, and as a result of this deflection you will have tension on the top side and compression on the bottom side, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगी। अब जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगी इसके लिए, उसकी नेचर यही होगी ट्रायंगुलर फैशन में, मगर अब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बॉटम में है, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे नीचे। पहले इधर क्या होता था, सिंपली सपोर्टेड के अंदर, यहाँ पर बॉटम के अंदर आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस होती थी और टॉप के ऊपर क्या होती थी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। सो यू मस्ट नो कि ओवरऑल बॉडी का बिहेवियर ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग कैसा है, वो किस तरह डिफ्लेक्ट कर रही है, उसमें बेंडिंग आ रही है या हॉगिंग हो रही है। ये जो अभी हमने पहले सिंपली सपोर्टेड में केस देखा, इसको हम बेंडिंग कहते हैं, और जो यहाँ पर अभी हम केस डिस्कस करें कैंटिलीवर में, दिस इज अ हॉगिंग फिनोमेना, हॉगिंग प्रोड्यूस हो रही किसी चीज के अंदर, दिस इज कॉल्ड हॉगिंग एंड दिस इज कॉल्ड अ बेंडिंग फिनोमेना। बेंडिंग इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हॉगिंग इज टेकन एज नेगेटिव। अच्छा जी, इसकी बेस के ऊपर फिर हमने एक जी एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। आई विल जस्ट शो यू द न्यूमेरिकल एज वेल। वी डिड दिस न्यूमेरिकल 503, जिसके अंदर दो पार्ट्स था, हमें थे रिक्वायर्ड के, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फाइंड करें, मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस फाइंड करें, ठीक है जी। द वर्ड वाज मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, एंड जब मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस का वर्ड है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस उस वक्त होंगी जब मेरे पास एक तो मोमेंट मैक्सिमम होगा, वाई मैक्सिमम होगा, और आई सबसे कम होगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये बाकी दो फैक्टर्स जो हैं, these are directly proportional to each other. So in order to get a maximum value of flexural stress, you need to have a maximum value of moment, maximum value of y, and least value of I. As far as I is concerned, हमने ये चीज देखा था कि अगर एक बीम है, ठीक है, तो बीम along the length जो है अपने span के along, उसका moment of inertia change नहीं करता। I is basically equal to bh cube by 12. So this is the width and this is the depth of the beam. So once you look at a beam, like if I draw a beam like here, like this one, which is like this way, ठीक हो गया जी। तो along all along this, मैं यहाँ सेक्शन कट करूंगा, इधर भी विड्थ इतनी है जितनी फ्रंट पर थी, अगर मैं यहाँ सेक्शन कट करूंगा, इधर भी मेरे पास विड्थ इतनी है जितनी यहाँ पर थी। तो all along the span, the width b and the height of the beam normally remains constant, ये चेंज नहीं करती। सो इसका मतलब है आई जो है ये कांस्टेंट है, इसका इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वेरिएशन नहीं हो रही। सो द वेरिएशन इज कॉज्ड बाय दिस मोमेंट and why. We already have discussed that there is a variation of moment along the span. Once you are moving along the span, if there is a beam subjected to different loading, ठीक है जी। So if you make sections like if you draw sections like with the yellow color, like there is a section here, section here, section here. So one section, two section, and three section. So this is we already have discussed कि section one के ऊपर जो moment होगा, if I call it like M1, तो वो different होगा M2 से, और वो different होगा M3 से। You will have different values of इंटरनल फोर्सेस जिनके अंदर मोमेंट्स भी आते हैं और शेयर भी आती है।
ये दोनों इंटरनल फोर्सेस की टाइप्स हैं, एक्सियल फोर्सेस भी इसमें इंक्लूड होती हैं। सो वंस यू मूव अलोंग द स्पैन, यानी स्पैन के अलोंग मूव करते जा रहे हैं आप, सो these internal forces, moment and shear forces, they will vary. So in between the supports, there will be a point जहाँ पर maximum moment जो है ऑब्जर्व होंगे। so आप ऐसा करेंगे कि आप स्पैन में से वो पॉइंट चूज करेंगे जहां पे मोमेंट क्या हो, मैक्सिमम हो, पहली चीज। सेकंड चीज, वेरिएशन इन वाई, हमने ये भी देखा था कि ऑल्दो जो है इसकी डेप्थ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी, like this is the depth, it remains constant throughout the beam, but the thing is like कि अगर मुझे कहा जाए कि भाई यहाँ पर स्ट्रेस मालूम करें और मुझे कहा जाए यहाँ पर स्ट्रेस मालूम करें, ठीक है जी, so these 2 points, like the first point and the second point, both of them they will have a different value of y. For the first point I will have like y1, for the second point from neutral axis I will make it like y2. तो इसका मतलब है कि मुझे अगर मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, सो आई नीड टू गो अलोंग द डेप्थ वाइज, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, सो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगी। तो हमने फिर जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, वी कंसीडर्ड द टॉप एंड बॉटम मोस्ट फाइबर्स टू फाइंड दिस मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। द अदर पॉइंट वाज, इसमें न्यूमेरिकल में ये भी कहा गया था कि किसी एक पर्टिकुलर फाइबर पे जो कि 2 मीटर अवे फ्रॉम फ्री एंड थी, ठीक है जी, और द फाइबर वाज लाइक 20 mm फ्रॉम टॉप, उससे 20 mm टॉप से थी, उसके ऊपर भी फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस फाइंड करें, उसके लिए भी हमने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आई विल शेयर द लेक्चर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज दोनों लेक्चर, जो पिछला लेक्चर भी था और आज का लेक्चर, दोनों को आपके साथ आज या कल के अंदर शेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये उसके ऊपर सॉल्व किया हुआ था हमने। अच्छा, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, विच इज 504, और इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं एंड देन प्रोसीड करते हैं आगे। पिछला न्यूमेरिकल जो था, दैट वाज आई बिलीव वाज अ कैंटिलीवर बीम, या इट वाज अ कैंटिलीवर बीम लाइक फिक्स्ड एंड एंड इट हैज अ फ्री एंड, और कैंटिलीवर बीम विद ट्रायंगुलर और वीडियल लोड, यानी वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था उसके ऊपर। नाउ यू हैव अ लिटिल बिट इजियर न्यूमेरिकल, जिसके अंदर उसने बेसिकली कहा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 इंच वाइड बाय 4 इंच हाई एंड 12 फीट लॉन्ग। अब ये जो चीज़ें हैं बेसिकली दीज आर द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, यानी 2 इंच वाइड का मतलब है ये उसने बी दे दी है, 4 इंच हाई इसका मतलब हाइट दे दी है। सो यूजिंग दीज टू फैक्टर्स बी एंड एच, यू आर एबल टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू बी एच क्यू बाय 12। ठीक हो गया जी, तो हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ 12 फीट स्पैन, ये स्पैन दे दिया उसने। स्पैन क्यों दिया? बिकॉज अगर हमें किसी जगह के ऊपर वेरिएशन फाइंड करनी है मोमेंट की, तो मुझे रिएक्शंस निकालने के लिए और शियर फोर्स डेवलप करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट डेवलप करने के लिए मुझे स्पैन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 2000 पाउंड एट अ पॉइंट 3 फीट फ्रॉम वन ऑफ द सपोर्ट्स। ये यहाँ पर फिगर के अंदर शो कर रहा है, ये बेसिकली वो पॉइंट लोड है जो कि 3 फीट फ्रॉम सपोर्ट से लगा। डिटरमिन द मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस इन अ फाइबर। पहली चीज कहता है डिटरमिन द मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस, सेम थिंग जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल के अंदर का था। अगर मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस देखनी है तो मुझे इसी बीम के अंदर, इसकी बीएमडी डेवलप करनी है सबसे पहले, और उस बीएमडी में से वो पॉइंट चूज करना है, एनी पॉइंट विच इज हैविंग मैक्सिमम मोमेंट, एम मैक्स जहां पर हो सबसे ज्यादा, ठीक है जी। ऐसा पॉइंट चूज करूंगा उसके अंदर से, ताकि मैं मैक्सिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस निकाल सकूं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि एक तो मैक्सिमम फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस फाइंड करें, एंड द स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड 0.5 इंच फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम एट मिड स्पैन। मिड स्पैन पे जाएं, यानी यहां पर जाएं एग्जैक्ट, यहाँ कोई पॉइंट होगा, पहले वहां पर मोमेंट फाइंड करें, ठीक है जी। जैसे आप सेक्शन कट करते थे और सेक्शन फाइंड करने के बाद यहाँ पर क्या होता था, एक बेसिकली मोमेंट की वैल्यू थी, यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे, जो कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से भी देख सकते हैं। और सेकंड फिर वो कहता है कि इसी के फाइबर के लिए देखें कि आप अगर इस बीम को क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो कहता है दैट फाइबर शुड बी लोकेटेड 0.5 इंच फ्रॉम टॉप, यानी टॉप से 0.5 इंच हो, यानी यहाँ से इधर नीचे हो कहीं भी, इस जगह पे फाइबर है कहीं, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर आप बीम की डेप्थ देखते हैं, तो ओवरऑल बीम की डेप्थ हमें कितनी की थी, 4 इंच। इसका मतलब अगर मैं सेंटर से ऊपर तक जाता हूँ, दिस विल बी 2 इंचेस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप फाइबर तक। अब 0.5 इंच ऊपर से माइनस कर लें,
तो नीचे बाकी आपके पास y कितना रह जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये और ये ऊपर जो डिस्टेंस है दिस इज 0.5 इंचेस और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास 1.5 इंच रहेगा, ठीक है। सो y विल बी 1.5 फॉर दिस केस। तो उसके ऊपर भी बेसिकली वो कहता है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस भी मालूम करें। ये चीज़ बहरहाल लाजमी चीज़ है कि हम सबसे पहले मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस की तरफ मालूम करेंगे, यानी हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप करनी है ताकि हम देख सकें कि बीम के अलोंग वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम मोमेंट हो। अगर हम इसी डाटा को कंसिडर करें और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डेवलप ना करें, ठीक है, तो आप क्या कर सकेंगे, इस डाटा से रिएक्शंस तो निकाल लेंगे, मगर रिएक्शन निकालने के बाद आपको ये नहीं पता कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम किस लोकेशन पे है, ठीक है। सो इट इज़ मच बेटर और कन्वीनियंट कि आप एक उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वेरिएशन की अलोंग द स्पैन, और उसमें से फिजिकली आप उसको उस पॉइंट को चूज कर लें जहाँ पे मोमेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। So first thing we have to find the reaction for this beam. Um, Again the same concept, because this is a roller support here and there is a hinge support here, और इसकी जगह आपने सबसे पहले स्टेप के अंदर रिप्लेस करना है बाउंड्री कंडीशन को विद अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ रिएक्शन से। सो हिंज के ऊपर 2 रिएक्शन होते हैं, वी ऑलरेडी हैव नेग्लेक्टेड दिस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बिकॉज इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्शंस के अंदर सिर्फ नॉर्मल लोड्स हैं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन के अंदर लोड हैं, तो रिएक्शन हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में होंगे। इफ योर लोडिंग इज इंक्लाइंड समहाउ लाइक दिस वन which is having like a vertical component as well as a horizontal component as well, तब आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस में भी आएंगे। अगर एक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं तो फिर रिएक्शन के अंदर भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस डेवलप होती हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पर उसने बेसिकली एक R1 कह लिया और एक को R2 कह लिया, ठीक है, ये इनके रिएक्शंस हो गए। और नाउ यू कैन टेक मोमेंट एट एनी ऑफ दिस लोकेशन, यानी इस टू लोकेशन के ऊपर भी मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट जीरो ले सकते हैं, इस पे भी ले सकते हैं। उसने बेसिकली समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट R2 इक्वल टू जीरो लिए। अगर मैं R2 को जीरो ले रहा हूँ, इट मीन्स दिस इज माई पॉइंट ऑफ रोटेशन, बीम इसके अबाउट रोटेट करेगा अगर मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूँ। अब सारी फोर्सेस को इसके अबाउट सम करना स्टार्ट करने, पहली फोर्स यानी ये मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट 2 इक्वल्स टू जीरो, जिस तरह हम नॉर्मली करते थे, कंसिडरिंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस आर पॉजिटिव। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, पहली R1 फोर्स है, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट योर बीम क्लॉकवाइज करी, इसलिए नेगेटिव R1 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच इज द डिस्टेंस मोमेंट आर्म, दिस इज 12, ठीक हो गया जी, ये फोर्स होगी। नेक्स्ट फोर्स है, दिस इज 2000 पॉइंट, दिस इज ट्राइंग टू रोटेट योर बीम एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट 2, इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज करिए, सो आई विल टेक इट पॉजिटिव। व्हाट इज द फोर्स 2000 multiply by the moment arm for this is because this is a line of action of force and this is the point of rotation, इनके दरमियान perpendicular distance कितना है, this is 9 feet given, multiply by 9, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट फोर्स आप इस पॉइंट पर आएंगे, दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इट विल प्रोड्यूस नो मोमेंट्स, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। ये चीज यहाँ पर सॉल्व हुई है, दिस विल गिव यू R1 इक्वल्स टू 1500 पाउंड, ठीक हो गया जी। सेकंड, अगर आपके पास R1 निकल गया है, ठीक है जी, तो R2 आप निकाल सकते हैं दो तरीकों से। आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट R1 भी जीरो ले सकते हैं जिस तरह इसने किया हुआ, ठीक है, और द अदर प्रोसेस के आप इसको भी देख लें। दूसरा प्रोसेस ये कि समेशन ऑफ Fy शुड बी इक्वल टू जीरो कंसिडरिंग वर्टिकल फोर्सेस आर पॉजिटिव, ठीक है जी। और लेट्स से कि मैंने R1 की वैल्यू पहले निकाल ली, दैट इज 1500 विच इज गोइंग अपवर्ड। फिर उसके अलावा यहाँ पर एक फोर्स है 2000 पाउंड विच इज गोइंग डाउनवर्ड माइनस 2000। फिर उसके अलावा एक रिएक्शन है R2 विच इज गोइंग अपवर्ड प्लस R2 इज इक्वल टू जीरो। इसमें से सॉल्व कर लें, R2 विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस 2000 है, उधर जाके 2000 हो जाएगा, माइनस 1500 एंड दिस विल बिकम 500 पाउंड्स R2, and this is same which is being done here with a different method.
उसने क्या किया कि R2 निकालने के लिए समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट R1 इक्वल टू 0 लिए। दोनों चीजें कर सकते हैं। दिस इज ये भी आपके पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, द वन आई हैव यूज्ड दिस इज आल्सो एन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। So you can use any of these two equations and find the other remaining reaction. अच्छा जी, जैसे आपने इसके रिएक्शन निकाले, सो इजी क्विकली हम इसकी shear force और bending moment की तरफ चलते हैं। लाइक रिएक्शन एट दिस पॉइंट इज 1500, यहाँ पर हमने 1500 निकाला और यहाँ पर हमने 500 पाउंड निकाला, ठीक है। सो 1500 इसका मतलब है दिस इज अ लाइन विच इज शोइंग 0, ठीक है। तो मैं इससे ऊपर पहले मूव करूंगा। फर्स्ट आई विल गो स्ट्रेट बिकॉज देयर इज अ पॉइंट लोड, यहाँ पर एक पॉइंट लोड है जो इसको 1500 तक लेके जाएगा। देन इट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज नो लोडिंग। वंस आई रीच दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर 2000 नीचे आना है, डाउनवर्ड है, बिकॉज 2000 फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो 1500 माइनस में से इसमें से माइनस कर दें 2000, सो यू विल गेट नेगेटिव 500। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी, यहाँ पर कोई पॉइंट ढूंढ ले जो कि नेगेटिव 500 को रिप्रेजेंट करो। You will connect these point with the vertical line. From here to here, again there is no loading, so it will remain constant. Once you reach here, there is a 500 load acting upward. So negative 500 plus 500 plus 500, this will leads to 0. ठीक हो गया। सो अल्टीमेटली आप 0 पॉइंट के ऊपर एक मार्क करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। दिस इज अ shear force diagram which negative portion and some positive portion. Using this now SFD diagram, shear force diagram, you are now able to find the BMD. इसके लिए BMD फाइंड करने के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि रोलर और हिंज सपोर्ट के ऊपर जो है मोमेंट्स जो होते हैं, दे डोंट रेजिस्ट मोमेंट्स, सो मोमेंट्स विल बी जीरो एट दोज लोकेशंस। सो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स दोनों इस बीम के ऊपर मोमेंट्स को जीरो लेंगे। टू गेट दिस पॉइंट, यहाँ पर आने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हम नीचे शो करते हैं लाइक दिस वे। यहाँ पर भी मोमेंट जीरो है, यहाँ पे भी मोमेंट जीरो है, ठीक है जी। टू गेट दिस पॉइंट हेयर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि shear force diagram पॉजिटिव है। यू विल फाइंड दिस हैश्ड एरिया फर्स्ट which is equal to 1500 which is the height multiply by the length of this thing। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 4500। ये आपके पास पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लाइन लाइन से इसलिए कनेक्ट किया बिकॉज द shear force diagram इज 0 डिग्री और ये लाइन क्या होगी, फर्स्ट डिग्री की होगी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट डेवलप करने के लिए इस 4500 में से आपको ये हैश्ड एरिया जिसको मैंने भी किया, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस हैश्ड एरिया। दिस हैश्ड एरिया इज इक्वल टू दिस इज द हाइट which is 500 and this is the length which is given in the numerical as just a moment, this is equal to 9 feet। so for आप क्या करेंगे, 500 को 9 feet से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल गिव यू नेगेटिव 4500। अब आपने क्या करना है कि यहाँ ऑलरेडी 4500 था, इसमें से माइनस करेंगे 4500 अगेन एंड यू विल रीच द पॉइंट 0। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब अगर मुझे मैक्सिमम फ्लेक्चर्स, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर असेसमेंट में कहा जा रहा है कोई पॉइंट नहीं गिवन हो रहा और खाली ये कहते हैं कि मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस मालूम करें, तो मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस इस बीम के सेंटर में नहीं है, ठीक है। इफ यू हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम with a point load here like this one, ठीक है जी, और यहाँ एंड्स के ऊपर उसके ऊपर रोलर है, हिंज है, सो नॉर्मली यू विल हैव द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम एट द मिड स्पैन्स, ठीक है। इन द अदर वे वी ऑलरेडी हैव डिस्कस कि अगर आपके पास एक फिक्स एंड बीम है and which is subjected to some point load or maybe a UDL, any kind of loading, so you will have maximum moments at the supports, ठीक है, और मोमेंट डिक्रीज होता होता जीरो हो जाता है एट द फ्री एंड। सिंपली सपोर्टेड के अंदर एंड्स के ऊपर मोमेंट्स जीरो हो जाते हैं और सेंटर में आके मैक्सिमम मोमेंट्स अचीव होते हैं, ठीक है। However, once you look at this numerical, which is a simply supported beam, but the point load is not acting at the center, it is acting over here, ठीक है। वो उसमें कह लें कि सिमेट्री नहीं है, this the loading is not symmetrical about the supports। So in order to find the maximum flexural stresses, you need to have a maximum moment, ठीक है। तो अगर आप मिड स्पैन को देखेंगे, मिड स्पैन पे मूवमेंट मैक्सिमम नहीं है, द मैक्सिमम मूवमेंट इज अकरिंग एट दिस पॉइंट। देखें यहाँ से जीरो था, जीरो से इंक्रीज होते होते ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज द मैक्सिमम मूवमेंट, ठीक है।
अब हम अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच वाज सेइंग कि फाइंड द मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, दिस इज द फॉर्मूला mc ओवर i। इसके लिए मोमेंट कौन सा लेना है, 4500 विच इज द मैक्सिमम मोमेंट। अगेन यहाँ पर यूनिट्स की कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है। द मोमेंट इज गिवन इन यूनिट्स ऑफ पाउंड फिट, सो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू पाउंड इंचेस। सो 12 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। दिस इज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फीट टू इंचेस। फीट से इंचेस में जाने के लिए आपने क्या की कन्वर्जन की। व्हाट इज सी? अब देखें आपके पास ये बीम था, ठीक है जी, विच इज हैविंग अ टोटल डेप्थ और हाइट इक्वल्स, दिस इज हाइट नॉट बी, दिस इज हाइट विच इज इक्वल टू 4 इंचेस, ठीक है। तो अगर ओवरऑल हाइट 4 इंचेस थी इस बीम की, 4 इंचेस, तो इसका मतलब है सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक कितनी होगी, 2 इंचेस, ठीक हो गया। और हमने पहले डिस्कस किया था कि इफ यू वांट टू फाइंड मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, then you need to have the maximum value of y which we call as c, ठीक है। तो y max फाइंड करना पड़ेगा। y max यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जिसको हम c भी कहते हैं, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस। दिस इज इक्वलेंट टू दिस पार्ट एज वेल, ठीक है, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू extreme fiber, this is called c। so from figure it is very clear that c is basically equal to half of the depth, ठीक है। हम कह सकते हैं c is equal to हाफ ऑफ डेप्थ, जितनी आपकी बीम की डेप्थ है उसका हाफ कर लें, ठीक है। तो सी कम्स आउट टू बी 2 इंचेस। 4 का 4 डिवाइडेड बाई 2 किया तो दिस बिकम 2 इंचेस। यहाँ पर इसने 2 इंचेस कंसिडर किया। आई अगेन बी एच क्यूब बाई 12, दिस इज द विड्थ, दिस इज द हाइट एच क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यू गेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस इन यूनिट्स ऑफ पी एस आई एज 10,125। दिस इज द मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि भाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस फाइंड करें एट मिड स्पैन लोकेशन, और किसी ऐसी स्ट्रेस के लिए, किसी ऐसी फाइबर के लिए जो कि 0.5 इंच फ्रॉम टॉप हो, ठीक है जी। इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो पहली चीज उसने हमें लोकेशन बता दी अलोंग दी स्पैन। उसने कहा कि मैक्सिमम नहीं फाइंड करना, मिड स्पैन के ऊपर बताएं कितनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट की वैल्यू चाहिए कि इस पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा, ठीक हो गया। दूसरी चीज, नॉर्मली जो हमने पिछले पार्ट में किया, हमने यहाँ पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मालूम की फाइबर पे या इस पे, ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर पे। अब वो एक्सट्रीम पे नहीं कह रहा, वो कहता है बेसिकली किस पे फाइंड करें, 2 इंच फ्रॉम टॉप। तो इसका मतलब है अगर 2 इंच फ्रॉम टॉप है तो ये कोई लाइन है, तो अगर ऊपर से 0.5 इंच नीचे आना है, वो कह रहा है 0.5 इंच नीचे आए तो रिमेनिंग लेंथ y जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, टोटल 2 इंच था, 0.5 इंच नीचे आए, ठीक है। तो आपके पास नीचे रिमेनिंग कितनी रहेगी, 1.5 इंच, एंड दिस 1.5 इंच विल बिकम योर y। अब हम इन चीजों को देखते हुए फाइंड करेंगे। देखें, स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड 0.5 इंच फ्रॉम टॉप, ठीक है जी, ऑफ द बीम एट मिड स्पैन। पहले इस मोमेंट को भी निकालेंगे यूजिंग सिमिलर ट्राइंगुलर रूल, वो मैं आपको बताता हूँ किस टाइम। For example, this is a bigger triangle, ठीक है जी, and there is a smaller triangle as well which is being shown with a different color like a yellow color से इसको मैं represent कर देता हूँ, ठीक है जी। So you have these two different triangle, one bigger triangle red color से जो show है, there is a yellow with a smaller triangle। तो मेरे पास बेसिकली ये डिस्टेंस टोटल, ये हाइट भी है, ठीक है जी, ठीक है जी, ये 4500 है, और ये टोटल लेंथ भी है मेरे पास बड़े ट्राइंगल की, विच इज इक्वल टू 9 फीट्स, यानी ये डिवाइड हुआ था इस तरह करके, यहाँ से यहाँ तक 9 फीट्स है और यहाँ से यहाँ तक 3 फीट था। तो मेरे पास इस बड़े ट्राइंगल की बेस भी है, हाइट भी है। छोटे ट्राइंगल की बेस क्या मेरे पास है, देखिए मिड स्पैन का मतलब क्या होगा कि 12 का हाफ कितना है, 6 के ऊपर, यहाँ तक क्या होगा 6 डिस्टेंस, ऐसे ही होगा ना। 12 का मिड स्पैन का मतलब हो गया यहाँ से इधर भी 6 फीट और यहाँ से इधर भी 6 फीट। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज नाउ 6 फीट। मेरे पास ये डिस्टेंस भी है, हाइट मुझे मालूम करनी है। सो कैन वी यूज सिमिलर ट्राइंगल रूल। क्विकली इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, आप ये कर लें। परपेंडिकुलर 4500 डिवाइडेड बाय इसकी हाइट कितनी, इसके ट्राइंगल की ये बेस कितनी होगी, नीचे 9 फीट, ठीक है जी, इक्वल्स टू
इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर, जो कि मुझे मोमेंट फाइंड करना है, मोमेंट एट मिड स्पैन, इसको MID लिख लें, कुछ भी नाम दे दें, डिवाइडेड बाय इसकी नीचे बेस कितनी है इस छोटे ट्राइंगल की, दिस इज नाउ 6 फीट। इसको सॉल्व करें साइमल्टेनियसली एंड यू विल गेट मैक्सिमम मोमेंट एट मिड स्पैन, दिस इक्वल टू 4500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 9। इसको सॉल्व करें जी। तो ये देखें आपके सामने, ये उसने वैल्यूज निकाली। सो मोमेंट एट द मिड स्पैन इज नाउ 3000 पाउंड फीट। पहली चीज मोमेंट आपके पास आ गया। इससे इसके पहले पार्ट के अंदर आपने मोमेंट क्या लिया, मैक्सिमम मोमेंट लिया। अब आप मैक्सिमम मोमेंट ले रहे, आप मोमेंट एट मिड स्पैन ले रहे हैं। क्लियर। नाउ द सेकंड पार्ट इज टू फाइंड वाई, उसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया और दोनों को कंपेयर भी किया कि इन फर्स्ट पार्ट यू टुक वाई एट दिस लोकेशन, यानी आपकी जो फाइबर थी वो इस पॉइंट पे थी या फिर इस लोकेशन पे थी, ठीक है, विच इज द एक्सट्रीम डिस्टेंस। तो हमने y की जगह c कंसिडर किया विच इज हाफ ऑफ द डेप्थ। अब वो कह रहा है कि बेसिकली आपने फाइबर जो है वो एक्सट्रीम लोकेशंस पे नहीं कंसिडर करनी, यू हैव टू कंसिडर अ फाइबर लाइक हेयर, यहाँ पर जिसको उसने ब्लैक कलर से शो किया हुआ है, जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ। सो दिस फाइबर इज लोकेटेड 0.5 इंच फ्रॉम टॉप। some of the students will take y is equal to 0.5 inches which is wrong, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो है y इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू योर कंसर्न फाइबर, जिस फाइबर के ऊपर आप स्ट्रेसेस मालूम करें। सो टोटल जो इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर, दैट वाज इक्वल टू 2 इंचेस। इस 2 इंचेस में से आपने ऊपर का 0.5 इंच माइनस किया एंड यू विल गेट y इक्वल टू 1.5 इंचेस। नाउ यू हैव द y, you have the moments and you have the moment of inertia, तीनों चीजें अगेन जिस तरह पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर किया, अगेन यू हैव टू मेक द कन्वर्जन फ्रॉम फीट टू इंचेस, बाकी सारी इंचेस में रखिए, यू कैन फाइंड द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस को इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम, यानी इसका मतलब है कि बीम के अंदर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर लोडिंग केस के लिए, the maximum stresses are not occurring at the mid span, ठीक है। मिड स्पैन के ऊपर जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं वो 5062 हैं, और जबकि जो मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस हैं दीज आर 10,125 psi। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हो गया आपका जी सेकंड पार्ट। दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस इन यूनिट्स और लोडिंग कंडीशन का डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 506। इसको स्टार्ट करेंगे जी 5, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट रेज योर हैंड राइट नाउ। तो फिर हम 506 की तरफ मूव ऑन करते हैं।